promised I'd come and introduce him. You know, through failure and through success, a friend who's a friend during your worst times, and is the same friend when you are at the right at the top. And those friendships survive. And Anupam and I have been friends for so long. When I've been down in the dumps, Anupam has been there. When I'm at the top, Anupam is there to make sure that I stay level. So Anupam is an old friend, and I promised him that I would ask him the first question that nobody's ever asked him. I don't know what that is. Everybody, he must have been asked every question there is. But Anupam, come, let me try and surprise you with a question that maybe nobody's asked you. Anupam Khen. So, talk to us about chance and destiny. How much of failure is our own failure? How much of success is our own success? Or how much of it is chance and destiny? Are you a product of chance and destiny, or are you a product of your own sense of accomplishment? I'm a product of my hard work. Absolutely. I'll leave you. Thank you, Shekhar. Thank you. I had asked Shekhar that you introduce me. I know that you people have been listening to a lot of people, wonderful people, and you're tired since morning, but I'm like that शादी का घोड़ा जब तक उसके आगे डांस ना करो तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है. So actors are usually, they get very empowered if somebody claps properly and sort of not tired. So, I think in Hindi, so कुछ मेरे जज्बात जो असली हैं वो हिंदी में निकलते हैं. I went to a school which was a Hindi medium school where ABCD was taught in 5th standard. मतलब जब मैं 5th grade में पहुंचा तो ABCD सिखाया गया. When I'm speaking in English, I'm constantly translating and while talking to all of you. So that in itself is a failure in today's world. People are made to feel, who come from Hindi medium school, they are made to feel inferior, I feel. They are made to feel that, oh, देसी है, अच्छा हिंदी में बात कर रहा है, तो इसको ज़्यादा नहीं पता होगा. I've always tried to break that myth. So that was the first failure that I encountered. कुछ लोग आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, उनको भी आते आते. Let's get them. इनको इनकी सीट नंबर दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा जरा. आइए आइए श्रीमान जी, आइए. बैठिए, जल्दी बैठिए, शाबाश. है कि नहीं? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे. आ जाओ. नहीं कोई बात नहीं, बैठिए. क्या नंबर है सीट का? आगे है. वीआईपी है. आगे है. वीआईपी लेट होते हैं ना. आ जाओ. अरे फोटो लेट आओगे और वीआईपी खुद बिठाने को बोल रहा है. आ जाओ. ओ दादा. अच्छा ले लो, फोन ले लो. बैठ. Survival instinct, it's called. So, why did I choose the topic power of failure? Because I think I am the success story of my failures. My life, I do a play based on my life. It's called कुछ भी हो सकता है. उसकी शुरू की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा. मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में. मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे. मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना जारी है. तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल का नाम रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3. रात के 9 बजे जब रेडियो पर समाचार आते थे, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए. मेरा जन्म हुआ. मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी. अब माँ को तो रहना ही, वरना मुझे जन्म कौन देता. तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू. इतने पिताजी भी वहां पहुंच गए. पिताजी को देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी. उन्होंने पिताजी की तरफ देखा. पिताजी ने थोड़ा अकड़ कर जवाब दिया, यस बट व्हाई.
अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन। माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई। अंग्रेज नर्स ने तब मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई अडॉप्ट योर सन। माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को उन्होंने पहली बार गिड़गिड़ाते हुए देखा था। मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। So, if you see your life as a film going in front of you, at any stage of your life, you will deal with your life as a success story. Because nobody wants a failure story. I somehow, coming from a small town, saw my life, even when I was very poor, even when I came from a very poor family, I somehow saw my life as a success story. मैं एक छोटे परिवार में, छोटा मतलब छोटे घर में, गरीब परिवार में पैदा हुआ। हमारे यहाँ 14 लोग थे, 14 लोग, और इतने से जितना ये 1/4 ऑफ द स्टेज है, इतना सा हमारा घर था, और उसमें 14 लोग रहते थे, दादाजी, दादी जी, ताया जी, बुआ जी, उनके बच्चे, और काम करने वाला सिर्फ मेरे फादर थे। उनका पर मंथ तनख्वाह थी 90 रुपीज। 90 रुपीज में 14 लोगों का घर चलता था इन अर्ली 50s, मिड 50s। पर हम सब लोग बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीब होना क्या होता है उसका डर चला गया। सिंपल सी बात थी कि उसका डर चला गया। फिर मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। मेरे कभी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। आप में से 50% से ज्यादा कितने लोगों के आए? मतलब ऑलमोस्ट 100% लोगों के। माय गॉड। 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? माय गॉड 90%। 70% से ज्यादा कितने हैं? फिर भी आप नीचे बैठे हो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं। तो कुछ तो अच्छा किया मैंने। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दैट, थैंक यू। कुछ तो अच्छा किया है कि आप सब पढ़े लिखे महानुभाव नीचे बैठे हैं और मैं स्टेज पे बैठा हूं, 38% लेके मार्क्स। अच्छा, मैं खेल कूद में भी कुछ नहीं था। मैं मतलब एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देख के मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं थी कि जिसके हिसाब से मैं सोच के कहूं कि आज से 50 साल बाद मैं इफी के स्टेज पर एक मास्टर क्लास ले रहा हूँ, जहां मैं पावर ऑफ फेलियर की टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, मगर मेरे अंदर सपने देखने की शक्ति थी। क्योंकि छोटे शहर में जिंदगी गुजरती ही नहीं है, वक्त गुजरता ही नहीं है। छोटे शहर में सब कुछ बड़ा मध्यम सा चलता। मैं शिमला में पड़ा हुआ, तो क्या करता था, मैं सपने देखता था कि कुछ एक दिन बनूंगा। हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी नोटिसेबल। वी ऑल लिव आवर लाइफ टू बी नोटिस्ड। हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी पहचान हो, कि ये लड़का ये बड़ा अच्छा दिखता है, ये लड़की ये अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़का सबसे शैतान लड़का है, वो लड़की उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। मतलब कोई ना कोई एक पहचान जब आप छोटे बढ़ रहे होते हैं। मेरी कोई पहचान नहीं थी। हमारे पूरे बच्चों के, सारे घर में बच्चों का एक ही अगर आता था तो सबके ब्लू पैंट और ग्रीन स्ट्राइप शर्ट, तो सबके बच्चों के लिए एक जैसा आता था। बिकॉज डेमोक्रेसी इन स्मॉलर सिटीज एंड इन स्मॉलर टाउन्स इन ए गरीब परिवार इज वेरी मच प्रिविलेंट। ऐसा नहीं कि इसके लिए टेरिकॉट का कपड़ा ला दिया, इसके लिए खद्दर का ला दिया। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे कुछ बनूं कि मेरी एक अलग से पहचान। तो मैंने क्या करना शुरू किया
नाउ आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट कि मैंने अपने प्रिंसिपल की, टीचर्स की, फादर्स की, मेरे चाचा ताए की, उनकी नकल उतारनी शुरू कर दी कि ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बात करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो मेरी एक पहचान बन गई, अरे उस लड़के को बुलाओ जो लोगों की नकल उतारता है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल फेलियर वॉज ऑलवेज देयर. Then what my Dadaji did about my being poor, my father, who was just a clerk in the forest department, he took away the fear of failure from me. 9th standard में था मैं, तो 9th standard में आपके अभी भी होता होगा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो आपको अपने पेरेंट्स से साइन करा के ले जानी होती है, ऐसा होता है अभी भी? आप लोग शायद रिपोर्ट कार्ड घर ले जाते ही नहीं है, ऐसा तभी बोल नहीं रहे जोर से, तो एटलीस्ट हमको करना पड़ता था. तो मैं ये मौका देखता था कि मैं तब अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन कराऊं जब वो जल्दी में हो, ताकि वो पढ़े ना. तो एक दिन मैंने उनको रिपोर्ट कार्ड दी, तो अपने स्टोर के इंचार्ज थे, वो थोड़ा उनको भूल गए, तो उन्होंने वो स्टोर की चाबी चुनी और फिर मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा. बोला, हैं तू अपनी क्लास में 59th आया? मैंने कहा हाँ पापा. स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60. फिर मुझे लगा अब मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, तो एक लंबा पॉज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है. वो अगर सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन आ गया. लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है. एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आ जाना. And then he said a very beautiful line. He said, remember, failure is an event, never a person. तो अगर 14 साल के बच्चे का एक उसके खुद के फादर ये डर निकाल दें कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है. बट दैट्स नॉट द केस इन टुडेज टाइम. फेलियर, पेरेंट्स सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं फेलियर के लिए. ये सब चीजें, मैं कोई ऐसी ज्ञान की बातें यहां पर किसी और की लाइफ से नहीं कर सकता. मैं आपके साथ वही बातें कर सकता हूं जो मुझे आती हैं, द थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ. सो आई एम, एज आई टोल्ड यू, आई एम ए सम टोटल ऑफ माय फेलियर्स. अब आप लोग कहते हैं कि जी एक्टर जो है वो बचपन से बनता है, उसके अंदर से एक्टिंग होती है, यू आर बॉर्न एक्टर. ये सब बकवास है. आप इस बात को तो मानते हैं कि मैंने अच्छी एक्टिंग करता हूं? मैं मानते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सर. थैंक गॉड. ताली भी नहीं मारा. भैया जी कहाँ जा रहे हो आप? हेलो, कहाँ जा रहे हो अभी? हाँ, ओके, कम. पहले मैं तब तक रुक जाता हूँ. ये कहाँ जा, इन्होंने लास्ट मिनट पे अपना आंसर चेंज कर दिया. ये बाहर जा रहे थे. मैं भी ढीठ हूं, मैं भी छोड़. पावर ऑफ फेलियर है ये. हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सर ने बोला. देखो कहाँ जा रहे थे आप? नजदीक से देखना चाहते थे. हाउ स्वीट. मैं आपके साथ बैठ जाऊं? सो बोलते ना कि बॉर्न एक्टर है. मेरा अगर मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं एक्टिंग का, इट वॉज अ डिजास्टर, मेजर डिजास्टर. आई वॉज इन 5th grade. मैम आप अपने बच्चों को बताना चाहती है ना कि फेलियर के बारे में. ये देखिए, हिंदुस्तान का बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, ये लीजिए. अभी मैं शो रील अपनी देख रहा था. बट फर्स्ट प्ले का एक्सपीरियंस, आई वॉज इन 5th grade. हमारी क्लास टीचर मिसेस बजाज ने एक प्ले चुना करने के लिए. प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान. और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला. बट आई वॉज वेरी थिन. आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू अ की होल विद बोथ माई आईज. बहुत ही पतला था. जब कोई तेज हवा चलती थी तो मेरी माँ जो है मेरा स्कूल बैग और भारी कर देती थी कि कहीं मैं उड़ता ना चला जाऊं. तो मुझे मिल गया पृथ्वीराज चौहान का रोल. और जो क्लास में सबसे हट्टा कट्टा लड़का था, नंद किशोर,
उसको बन गया जयचंद का रोल, उसको मिल गया। नंद किशोर जो था वो एक दूध वाले का बेटा था, अच्छा मोटा ताजा, साइज में मैं 3 गुना पतला था, वो साइज में बड़ा था। और पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ ऐसी थी प्ले में कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन से प्यार हो जाता है संयुक्ता से, और उसको प्ले में पाने के लिए मुझे जयचंद को 3 बार गिराना पड़ता था। उसका नाम था नंद किशोर, जो निक नेम था उसका नंदू। तो नाटक जब खड़ा हो गया तो मेरे शुरू हो गया तो पर्दा वर्दा उठा, तो मेरे फादर हमेशा 8th रो में बैठे, और मेरे फादर का फर्स्ट प्ले का एक्सप्रेशन और उनकी लास्ट फिल्म जो उन्होंने मेरी देखी थी उनकी मृत्यु से पहले सेम था, मेरा बेटा क्या बात है। तो उसी एक्सप्रेशन के साथ वो बैठे थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि प्ले के एंड में क्या होता है। मैंने उनको कहा था ये पापा मैं जीत जाता हूँ एंड में, मैं उसको 3 बार गिराता हूँ नंदू को। तो मेरा डायलॉग था चला जाना बकवास कर तू। ऐसे मुझे तलवार घुमानी थी और चला जा बकवास कर तू, और मुझे नंदू को गिराना था। तो पहली बार मैंने बोला चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर गया। दूसरी बार बोला चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर गया। तीसरी बार जब मैंने बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा और बोला नंदू आपके गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा। नंदू पलटा, और सडनली ऑडियंस में से मैंने पहली बार सुना लोग कर रहे हैं नंदू, और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर मेरे फादर की गोद में फेंक दिया। तो मुझे लगा चलो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे, मेरा मेन रोल था, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिलेगा। तो अनाउंस होना शुरू हुआ, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, किसी और प्ले को मिला, किसी और एक्टर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मैं फिर खड़ा हो गया, मेरे पिताजी ने कहा ठीक है खड़ा रहे, तो फिर वो किसी और को मिल गया। फिर मैंने कहा लगा आप मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज गोज टू, वो नंद किशोर को मिला। तो मैं बड़ा उदास अपने कमरे में बैठा था, मतलब वो छोटे से कमरे में साइड में। तो जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं और अगर कोई बच्चा फेलियर को एनकाउंटर करता है तो बाकी लोग उसकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि दे डोंट वांट टू एम्बैरेस हिम। तो कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे फादर घर के बाहर से जंगली पीले फूलों का एक गुच्छा लेकर आए और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दिया और बोला बेटा ये रख, ये हारने के लिए नहीं है, ट्राई करने के लिए है। तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट अवार्ड दैट माय फादर कुड गिव मी। सो दिस होल थिंग अबाउट कि एक्टर्स बॉर्न होते हैं, ये सब बकवास बिल्कुल भी नहीं। दूसरा एक और, I keep giving you examples of failure so that you get this out of your system that remember, failure is an event, never a person. We are too scared of failure today's time. You're always trying to, somebody is trying to make you feel that somebody is doing better than you. आजकल के माहौल में तो आजकल we are in the world of social media, somebody has more followers than you are, then somebody is doing better than you, somebody is, so this, you are always frightened. And more than you, people who are more frightened than you are your parents. अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां उनको देखती नहीं है, ये बहुत होता है। तो हमारा भी वही हाल था, डीएवी स्कूल में पढ़ता था मैं। तो हमारे टीचर अलग अलग किस्म के टीचर थे। मेरी एक्टिंग का लेसन्स कहां से शुरू हुए? टीचर्स। हमारे एक टीचर थे ज्योग्राफी के, वो क्लास में आके ऐसे बैठते थे, ये बहुत पीछे नहीं है, इसको थोड़ा कोई मेरे 1 मिनट, हेलो कोई है सर, किसी को बुलाना, आइए इसको आगे रहे। अरे बाप रे बड़ा भारी, और थोड़ा नहीं यहाँ ले लीजिए, इधर ले, हाँ थोड़ा और आगे, बहुत वो राजगद्दी पीछे लग रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे नहीं हो गया, थैंक यू। तो ओह वाह,